Good morning, everybody. How are you? I hope everybody is happy as well as safe at your homes. Dear students, once again welcome to my YouTube channel. Myself, SP sir, full form you know already, Shuprasad sir. Dear students, in today's business studies lecture, that is today on 9th October 2020, 12th business studies lecture, as we have already started our chapter number 9, that is financial management. So dear students, in this chapter financial management, in my last video lecture I had started financial decisions. You must have watched that last video lecture. Here I had started with the help of a chart. 3 financial decisions were shown in that chart: investment decision, financial decision, and third one was their dividend decision. And in the last video itself, I had finished the first one, that is investment decisions. So in this video lecture, if you ask me that sir, what we are going to learn today, so dear students, today we are going to learn financial decisions. So this is our today's topic, financial decisions or financing decisions. Financing decisions, today's topic. What is that? Financing decisions. My dear students, मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज़ अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको पहले देखिए, समझिए, तो ही आपको ये वीडियो लेक्चर जो अभी चल रहा है ये समझ में आएगा. इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो लेक्चर इटसेल्फ. लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक टॉपिक का शुरुआत किया था, फिनेंशियल डिसीजंस, चार्ट ड्रॉ करके बताया था, और पहला टाइप दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये डिस्कस करके हो गया था. आज हम लोग सेकेंड टाइप दैट इज़ फाइनेंसिंग डिसीजंस ये डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अगर किसी ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो कृपया उसे देख लीजिए, ठीक है. इट वॉज माई सजेशन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ओके, shall we start? Okay, let's start. Financing decisions. Dear students, financing decision. Last year when you were in 11th standard, पिछले साल जब आप छोटे थे 11th स्टैंडर्ड में, तब आपने 11th बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर सीखा था, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ध्यान में आ रहा है बेटा? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. उसका ज़रूरत यहाँ पे है. मैंने आपको पहले भी बताया था, नो नॉलेज गोज वेस्ट. तो लास्ट ईयर सीखा था, वो लिंक यहाँ पे है अभी, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. वहाँ पे आपने शेयर्स के बारे में सीखा था, डिबेंचर्स के बारे में सीखा था, यस और नो, पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में सीखा था, यस और नो. आई होप
आपको याद आ रहा है, बीता हुआ ज़माना। हाँ, लास्ट ईयर, अभी कुछ महीने पहले जब आप 11th में थे। यस और नो? तो वही तो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस मीन्स ओवर हियर द कंपनी विल डिसाइड द सोर्स ऑफ raising long term finance, source of raising long term finance. So dear students, when we talk about long term finance, तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो शेयर्स और डिवेंचर्स ही आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस का केस में। उसके बाद आता है financial institutions as well as industrial banks. Commercial banks नहीं, commercial banks they don't provide long term finance, they provide short term and medium term finance. So if we talk about long term finance, then sources for a company is they can issue shares, they can issue debentures, or they can obtain loan from industrial banks as well as from financial institutions. So like this, if we talk about shares, then the preference is given to issue equity shares. Why equity shares? Because you have learned already in 11th standard that equity share capital is permanent capital for the company. Yes or no? Do you recall it? Equity share capital is permanent capital. तो कंपनी को इस बात का हेडेक नहीं रहता है। किस बात का हेडेक? शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करने का हेडेक। क्योंकि मालूम है एक बार शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जब तक कंपनी रनिंग कंडीशन में है तब तक वो पैसा कंपनी के ही पास रहने वाला है। दूसरा बात क्या? डिविडेंड का। यस और नो? डिविडेंड एवरी ईयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना ही चाहिए या पे करना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नियम नहीं है, ऐसा भी कुछ रूल नहीं है। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी। व्हेनेवर कंपनी अर्न्स सफिशिएंट, व्हेनेवर कंपनी अर्न्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दे डिक्लेयर डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साइड से अगर आप सोचेंगे, शेयर होल्डर की तरफ से सोचेंगे तो ये रिस्क कैपिटल है, लेकिन कंपनी का साइड से सोचेंगे तो अच्छा है ना। यस और नो? एक तो परमानेंट इन नेचर है और दूसरा हर साल डिविडेंड भी नहीं देना पड़ता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ प्लस पॉइंट्स है तो कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं आपको कि ये कंपनी को सोचना है कि दे हैव टू इशू इक्विटी शेयर्स और बोरोड फंड्स। व्हेन वी से दैट बोरोड फंड्स, आई टोल्ड यू दैट कंपनी विल इशू डिबेंचर्स। ओके, बोरोड फंड्स आर मोर रिस्की। बोरोड फंड्स, अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दैट ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स का। बोरोड फंड्स आर मोर रिस्की। क्यों मोर रिस्की भाई? एक तो बोरोड फंड्स, जैसा एग्जांपल लिया डिबेंचर्स का, तो आपने सीखा था लास्ट ईयर, डिबेंचर होल्डर्स को एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो करना ही पड़ेगा। इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर द कंपनी, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कंपनी दैट दे मस्ट पे द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। और दूसरा बात क्या? डिबेंचर्स को एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिडीम करना पड़ता है। रिडीम करना पड़ता है मतलब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना पड़ता है। तो एक सोचा समझा फैसला यहाँ पे क्या होगा while taking these फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि अगर कंपनी का, ध्यान देना ये सेंटेंस के ऊपर, अगर कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, मजबूत है, सो दे शुड गो फॉर बोरोड फंड्स, मीन्स दे शुड इशू डिबेंचर्स।
if they are not if their financial capacity is not that much strong, then they should go for issuing shares, equity shares. Got it everybody? एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर कंपनी का फाइनेंसिंग, या ऐसा बोले कि अगर कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन मजबूत है, फिनेंशियली दे आर साउंड, दे आर स्ट्रांग, देन कंपनी शुड इशू डिबेंचर्स. क्यों भाई? क्योंकि मालूम है वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पे करेंगे. ये भी मालूम है कि वो डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड पीरियड के बाद उनका पैसा वापस करना पड़ता है. तो अगर अच्छा फिनेंशियल दैट कंडीशन है कंपनी का, दे आर फिनेंशियली साउंड, तो हर साल इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं और वो स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद उनका पैसा वापस भी कर सकते हैं. एग्रीड और नॉट? और अगर फिनेंशियली साउंड नहीं है तो व्हाट इज सजेस्टेड फॉर दैट कंपनी, दैट यू शुड गो फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स. वाई इक्विटी शेयर्स? इसका आंसर मैंने आपको पहले दे दिया. क्या बोला कि वो हर एक साल डिविडेंड भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कंपनी के लिए, और एक बार एक्सेप्ट कर लिया शेयर होल्डर से तो वो लाइफ टाइम तक कंपनी के ही पास रहेगा. एग्रीड और नॉट? आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? सो ये सभी बातों को ध्यान में लेना पड़ता है. अब थोड़ा और अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट फाइनेंसिंग डिसीजंस इन्वॉल्व एनालाइजिंग द रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड. रिस्क एंड कॉस्ट, तो रिस्क का तो बात कर लिया मैंने, यस और नो. अब कॉस्ट, तो ये बात को भी ध्यान देंगे. बाय द वे कौन सा कॉस्ट? दो टाइप का कॉस्ट. एक तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग बिजनेस फाइनेंस और दूसरा कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट बिजनेस फाइनेंस. सो दीज पॉइंट्स आल्सो शुड बी कंसिडर्ड while taking the financing decisions. Now let's see that factors affecting financing decisions. So I hope that इतना डिस्कशन करने के बाद आपको ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है फाइनेंसिंग डिसीजंस का. लेट्स डिस्कस फर्दर दैट factors affecting financing decisions. Factors affecting financing decisions. My dear students, while using a whiteboard, मैं बीच में ऐसा बोलता हूँ जो अभी बोलने जा रहा हूँ. क्या? वही बात कि ग्रीन बोर्ड भी यूज़ करता हूँ समटाइम और समटाइम वाइट बोर्ड भी यूज़ करता हूँ. तो वाइट बोर्ड में क्या बात है? वाइट बोर्ड में बात यह है कि कभी कभी वो एक्सपोजर आता है कैमरा से या लाइट इफेक्ट आता है, तो बहुत बार वो इतना विजिबल नहीं होता है जो बोर्ड पे लिखा गया है. तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज मैं जो कुछ भी बोर्ड पे लिखता हूँ तो मैं कम से कम 2 या 3 बार तो रीड करता ही हूँ. आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इतना काफ़ी है. रही बात बोर्ड की, तो वैसे भी मैं ज़्यादा कहाँ कुछ लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, है कि नहीं? खाली पॉइंट्स लिखता हूँ और अपना फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है. तो पॉइंट क्या लिखा है वो तो मैं रीड करता ही हूँ. तो आप भी नोट करते जाइए कि हाँ सर ने कौन सा पॉइंट लिखा. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. फर्स्ट वी डिस्कस्ड फाइनेंसिंग डिसीजंस, वो कंसेप्ट बताया व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस. वो कौन से फैक्टर्स है जो फाइनेंसिंग डिसीजंस इसको अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट एंड देन नेक्स्ट वन इज रिस्क. कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट. डियर स्टूडेंट्स, while taking decisions
about these financing decisions, cost will be considered. मैंने बताया आपको दो टाइप का कॉस्ट, कौन सा? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस एज वेल एज कॉस्ट ऑफ यूजिंग द फाइनेंस. दीज शुड बी केप्ट इन माइंड कि कौन सा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को रेज करने में कितना हमारा रेजिंग कॉस्ट आएगा. शेयर्स और डिबेंचर्स में अगर कंपेयर करें तो इशूइंग शेयर्स मतलब रेजिंग बिजनेस फाइनेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू बोरोड फंड्स. कैसे? क्योंकि बोरोड फंड्स का केस में क्या होगा, खाली आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ईयरली, और वो डिबेंचर्स का ही बात कर रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ईयरली, प्लस वो जितने साल के लिए डिबेंचर्स इशू किया था, बोला कि कुछ 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किया था, 5 साल के बाद उसको रिडीम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कुछ खर्चा आया नहीं इसके अंदर. आई होप यू गेटिंग मी. लेकिन अगर शेयर्स की बात करें तो आपने इसके ऊपर वो लास्ट ईयर द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स सीखा हुआ है. बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है, तो वो फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर खर्चा होता है, बहुत सारा स्टेप्स है उसके ऊपर खर्चा होता है. सो कॉस्ट ऑफ रेजिंग बिजनेस फाइनेंस, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, आइदर शेयर्स और डिबेंचर्स और बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस भी ध्यान में लेना चाहिए एंड इट अफेक्ट्स the financing decisions. So what is suggested? What is suggested कि जहाँ पे cost of raising finance as well as cost of using the finance less होगा, कंपनी ने वो सोर्स को अडॉप्ट करना चाहिए. Got it everybody? And next one is risk. अब जाहिर सी बात है रिस्क फैक्टर कितना है ये भी कंसिडर करना चाहिए. What we are learning? We are learning factors affecting financing decisions. So जाहिर सी बात है जो रिस्क का फैक्टर है ये भी ध्यान में लिया जाएगा कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है. शेयर्स है, डिबेंचर्स है, इंडस्ट्रियल बैंक्स है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो किस में कितना रिस्क है ये भी कंसिडर किया जाएगा. और फिर जहां पे रिस्क कम होगा एज पर द नीड ऑफ द कंपनी दे विल गो फॉर दैट. नेक्स्ट फैक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट refers to the cost of involved in the issue of securities. Flotation cost. What is that? Flotation. Flotation. Flotation cost. How much flotation cost is involved over there? Dear students, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से बताया जा रहा है कि वो उसको रेज करने में कितना कॉस्ट आता है, अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. जैसा अभी शेयर्स का बात करें तो शेयर्स में तो भाई फॉर्मेलिटीज़ है. जैसा एग्जांपल के लिए हम लोग अंडर राइटर्स का एग्जांपल दे सकते हैं. आपने सीखा था लास्ट ईयर अंडर राइटर्स. वो अंडर राइटर्स को कमीशन देना पड़ता है, अंडर राइटर्स का फॉर्मेलिटीज़ होता है, ब्रोकरेज होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, लिस्टिंग करवाना पड़ता है, तो ये सारा फॉर्मेलिटीज़ है, तो वो खर्चे हैं. तो कहते हैं ना कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये भी ध्यान में लेना पड़ता है. और अगर कंपेरेटिवली बोरोड फंड्स का बात करें तो वहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट कम रहता है. कहने का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ लोन कोई अंडर राइटर्स को कमीशन नहीं देना पड़ता है, ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, लिस्टिंग नहीं करवाना पड़ता है. कहने का मतलब क्या है? इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कम होगा कंपनी उसी को फॉलो करती है.
बाय द वे वो कंपनी का ज़रूरत के ऊपर भी रहता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। लेकिन ये फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंसिडर किया जाता है वाइल टेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजंस। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कंट्रोल कंसिडरेशंस, स्टेक ऑफ कैपिटल मार्केट्स। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा साइड में। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जो कि फिक्स्ड है उसका नेचर। आई होप यू गेटिंग मी। जैसा अभी रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, रेंट पे करना ही है आपको, यस और नो। या फिर ओवर ईयर वी कैन टॉक अबाउट इंश्योरेंस प्रीमियम का बात कर सकते हैं, सैलरीज का बात कर सकते हैं। अब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पे करना पड़ता है महीने के महीने, महीने के महीने रेंट पे करना पड़ता है, महीने के महीने सैलरी पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है, इधर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो ये सब कैसा है? ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। सो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड while taking the financing decisions. What is suggested कि अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये हाई है, ज़्यादा है, तो ऐसा कंपनीज को शेयर्स इशू करना चाहिए, और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो उनको डिबेंचर्स इशू करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बताया आपको कि शेयर्स का केस में कंपनी के लिए ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है कि उस शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर डिविडेंड पे करे, लेकिन डिबेंचर्स इशू किया तो एवरी ईयर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आपका पहले से ही वो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो वो इंटरेस्ट आपके लिए बर्डन बन जाएगा। आई होप यू गेटिंग मी। मतलब पहले से वो रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये खर्चे आपके ज़्यादा है, तो बिना मतलब का डिबेंचर्स इशू करके या बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर और एक खर्चा क्यों बढ़ा रहे भाई? इंटरेस्ट का खर्चा। तो समझदारी किसमें है? इक्विटी शेयर्स इशू करो। इक्विटी शेयर कैपिटल इज परमानेंट इन नेचर, हमेशा वो कैपिटल आपके ही पास रहने वाला है, और सबसे अच्छा बात हर एक साल डिविडेंड पे करना ही चाहिए, ऐसा कुछ नियम भी नहीं है। कंपनी बोल सकती है कि हाँ ये साल हमको प्रॉफिट कम हुआ है, सो वी आर अनेबल टू पे यू डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर इफ देयर विल बी सफिशिएंट अर्निंग, sufficient amount of profit, then we will pay you dividend. So like this. Got it everybody? So in nutshell to the point, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है so they should go for owned capital, and if the fixed operating cost is low they should go for borrowed capital. Then control considerations, next point of the discussion I am writing over here. Control consideration, control consideration, control consideration. My dear students, control consideration म्हणजे काय? Means what? Dear students, कंट्रोल, इनडायरेक्टली यहाँ पे बात हो रहा है वो ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल का। जाहिर सी बात है अगर इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, मतलब पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, अगर और ज़्यादा का बिजनेस फाइनेंस रेज करने के लिए और ज़्यादा का इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो कंट्रोल विल बी डाइल्यूटेड, यस और नो? ये सेम वैसा ही है
जैसे कि आज 100 ओनर्स है कंपनी के, 100 ओनर्स मतलब 100 शेयर होल्डर्स आर देयर, और शेयर्स इशू करेंगे तो ये ओनर्स का नंबर तो बढ़ जाएगा ना। अब तक ये 100 जन कंट्रोल कर रहे थे, अब वो और ज़्यादा के जो शेयर होल्डर बनेंगे सब मिलके कंट्रोल करेंगे। तो अब तक ये 100 जन ही कंट्रोल कर रहे थे, अब समझो वो 200 शेयर और इशू कर दिया, सॉरी वो 200 और शेयर होल्डर बन गए, तो अब वो 200 प्लस ये पहले के 100 मिला के 300 हो गए। कंट्रोल इज डाइल्यूटेड। आई होप यू गेटिंग मी। सो दिस कंट्रोल considerations are also kept in mind. What if the company is issuing debentures? Attend here please everybody, I want your attention now. ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट हो रहा है अब इस पॉइंट के बारे में। अगर कंपनी ये चाहती है, if company want that control should not be diluted, then they should go for borrowed funds, means they should issue debentures or they should obtain loan from financial institutions or industrial banks. Why so? Because debenture holders, they are creditors of the company. उनका कंट्रोल से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। They cannot control the company. I hope you're getting me. Creditors cannot control the company because they don't enjoy voting rights. Agreed. Shareholders enjoy voting rights, so I'm sorry, so through their voting rights shareholders control the company. So this point is also considered. And last point for the discussion is state of capital market. I'm writing over here state of capital market, state of कैपिटल मार्केट। राइट नाउ हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसका क्या कंडीशन है, वो कौन सा स्टेट में है, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड। मीन्स द कंडीशन इन द स्टॉक मार्केट आल्सो हेल्प इन मेकिंग चॉइस इन द बूम पीरियड। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इट इज ईजियर टू रेज फंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड। अभी ये बूम पीरियड क्या है, डिप्रेशन पीरियड क्या है, आई होप आपको ये सब मालूम है। आई एम सॉरी, बूम पीरियड, बूम पीरियड का मतलब तेजी का पीरियड। तेजी, जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। बूम पीरियड, तो ऐसे समय में इट विल बी वेरी इजी फॉर रेजिंग फाइनेंस। लेकिन अगर वही अगर डिप्रेशन का बात करें, सो कैपिटल हाउएवर डिप्रेस कैपिटल मार्केट मे मेक ऑफ इक्विटी शेयर्स डिफिकल्ट फॉर द कंपनी। तो वो तो बात तो आपको क्लियर हो ही गई कि बूम पीरियड के टाइम पर इजी होता है, और वही वो डिप्रेस, अब ये बूम का अपोजिट है डिप्रेशन का पीरियड में इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स करेगी क्या? जैसे अभी आज का डेट में कोविड-19, बिकॉज ऑफ कोविड-19 यहाँ पे लोगों के खाने के लाले पड़ गए। मतलब क्या? लाखों लोग बेरोजगार हो गए। यस बेटा, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसा आज के समय में अगर आप ड्यूरिंग कोविड-19 जहाँ पे लोगों के बेरोज़गार, मतलब लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, और ऐसे टाइम पे कोई उनको सूचना दे कि भाई मेरे सो एंड सो कंपनी ने शेयर्स इशू किया है, खरीदेगा क्या? बोलिए, लेगा वो? कहीं वो गुस्सा ना हो जाए उसके ऊपर, झापड़ ना मार दे उसको कि एक तो यहाँ पे खाने के वांदे हैं, रोज से खर्चा नहीं है, और तू बोल रहा है शेयर खरीद ले। बोलना क्या चाहता हूँ, इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से दैट ड्यूरिंग बूम पीरियड द if you talk about the state of capital market is very good.
It is our last point. The state of capital market means what? During boom period, if the company will issue shares or debentures, they will get the very nice response from the company. But during depression, like COVID-19, उतना अच्छा response नहीं मिलेगा. Public will not be interested. Okay. So I hope all the points are clear to all of you. I am going to summarize my today's lecture, that what we learned today. First, at the beginning, we discussed the concept of financing decisions, and then I started factors affecting financing decisions. Then we discussed cost factor, risk we discussed, and we discussed flotation cost. We then discussed fixed operating cost, and we discussed control consideration, and just now we finished state of capital market. Like this, my dear students, factors affecting financing decisions, total 5 points I have covered. So this was all about today's lecture. Once again, I would say that in the coming lecture, in the next video lecture, we will study about the third type of financial decision, that is dividend decisions. Today we finished the second one. First one we had learned, that is investing decisions. It was second one, that is financing decisions, and the third one we will learn in the coming video lecture, that is what? Dividend decisions. Okay, that's all for the day. Thank you very much for kind cooperation. Chalte, don't forget to like, comment and share my video lectures. Thank you very much for kind cooperation. Once again, I need your cooperation. Enjoy yourself.